নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই কেটি তোমালোকক ই কক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছো নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় 1 হিম্মত और জিন্দগীৰ অভ্যাসমালা। যেহেতু আমি পাঠটো সম্পূৰ্ণভাৱে বুজিছো, আজি অভ্যাসমালাত থকা প্ৰশ্নসমূহ আমি চাম। তেনেহ'লে বলা আৰম্ভ কৰো। सही विकल्प का चयन करो। किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है? কোনবোৰ ব্যক্তিয়ে সুখৰ সোৱাদ অধিককৈ পায় বুলি কৈছে। जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है, जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मजा बाद में लेता है, जिसके पास धन और बल दोनों है, जो पहले दुख झेलता है। আমি পাঠটোৰ মতে কি পাইছিলো? কোনবোৰ ব্যক্তি সুখৰ সোৱাদ অধিককে উপভোগ কৰিব পাৰে? जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मजा बाद में लेता है। ঠিক আছে, প্ৰথমে মূল্য বুজি পায়, তাৰ পিছত সুখৰ সোৱাদ পিছতকে উপভোগ কৰে। ঠিক আছে, মজা লয়। তাৰপিছত চোৱা, পানী में जो अमृत तत्व है उसे कौन जानता है? পানীত যে অমৃত তত্ত্ব আছে, অমৃতৰ গুণ আছে, সেইবোৰ গুণ কোনে জানে? ঠিক আছে, कौन जानता है? जो प्यासा है, जो धूप में खूब सूख चुका है, जिसका कंठ सूखा हुआ है, जो रेगिस्तान से आया है। ঠিক আছে, পানীৰ অমৃত তত্ত্বৰ গুণ কোনে ভালকে চিনি পায়? जो धूप में खूब सूख चुका है। ঠিক আছে, যোনে ৰ'দত শুকাই পৰিছে, হিয়ে অমৃত তত্ত্বৰ গুণ ভালকে মূল্য বুজি পায় পানীৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা, গধূলি वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय है। গধূলি वाली दुनिया के लोगों মানে ইয়াতে কি বুজোৱা হৈছিল পাঠটোত চাবাচোন। विवशता और अभाव में जीने वाले लोग, जय पराजय के अनुभव से परे लोग, फल की कामना न करने वाले लोग, जीवन को दाव पर लगाने वाले लोग। আমি কি পাইছিলো? গধূলি वाली दुनिया के लोगों মানে সেই গধূলিত বাস কৰা সেই দুনিয়াৰ মানুহসকল। ঠিক আছে, লোকসকল কি হয়? জয় পৰাজয় के अनुभव से परे लोग। ঠিক আছে, যোনে জয় আৰু পৰাজয়ৰ অনুভৱৰ পৰা দূৰত থাকে। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাবা, সাহসী মনুষ্য की पहली पहचान यह है कि সাহসী মানুহ এজনৰ আচলতে প্ৰথম চিনাকি কি হয়? প্ৰথম পৰিচয় কি হয় সাহসী মানুহৰ? सदा आगे बढ़ता जाता है, बाधाओं से नहीं घबराता, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, बिल्कुल निडर होता है। ঠিক আছে, কি কৈছিলে? সাহসী মানুহে কেতিয়াও কি নকৰে? আনৰ तमाशा देखने वाले लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका शुद्ध उत्तर क्या होगा? लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, बेलेगे की कब हे বিষয় চিন্তা নকৰে। ঠিক আছে, আগবাঢ়ো। संक्षिप्त उत्तर दो। चांदनी की शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठा पाता है? चांदनी মানে চন্দ্ৰৰ সেই শীতলতাৰ আনন্দবোৰ কেনেকুৱা মানুহে ল'ব পাৰে? ঠিক আছে, চাবা উত্তৰ এতিয়া। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है। যোনবোৰে ৰ'দত কি কৰিছে? ভাগৰি পৰিছে, দিনটো ৰ'দত কাম কৰি ভাগৰি পৰিছে। जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। যাৰ শৰীৰে হয়তো এতিয়া কি বিচাৰিছে? শীতলতা বিচাৰিছে, আৰু যাৰ মন এই ভাবিয়ে সন্তুষ্ট যে দিনভৰৰ সময়খিনি তেওঁলোকে ভাল কামতে লগাইছে। ঠিক আছে, আগবাঢ়ো। চাবা এতিয়া, लेखक ने अकेले चलने वालों की तुलना सिन्हा से क्यों की है? ठीक है, लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिन्हा से क्यों की है? অকলশৰীয়া ভাৱে আগুৱাই যোৱা মানুহ এজনৰ তুলনা সিংহৰ লগতে কিয় কৰিছে? ঠিক আছে, উত্তৰ চাবা। लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिन्हा से इसलिए की है, এই কাৰণে কৰিছিলে क्योंकि सिन्हा जंगल में अकेला निडर होकर घूमता है। जंगলত অকলে ঘূৰি ফুৰে। ঠিক আছে, निडर মানে ভয় নোখোৱাকে। वह भेड़ या भैंस की तरह झुंड में नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार अकेले चलने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होता है। অকলশৰীয়া ভাৱে আগুৱাই যোৱা সাহসী মানুহ এজন সদায় ভয় নকৰা হয় আৰু বিলকুল বেখৌফ হয়, ৰিস্ক লবলৈ ভয় নকৰে। ঠিক আছে, আগবাঢ়ো। जिंदगी का भेद किसे मालूम है? जिंदगी মানে জীৱনৰ ৰহস্য কোনে ভালকে জানে? চাবা, जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म ना होने वाली चीज है। ঠিক আছে, জীৱনৰ ৰহস্য সেইজন ব্যক্তিয়ে জানে যোনে জানে যে জীৱন কেতিয়াও শেষ নহয়। ঠিক আছে, জীৱন সদায় আগুৱাই গৈ থাকে। তাৰপিছত চোৱা, लेखक ने जीवन के साधकों को क्या चुनौती दी है? লেখকে জীৱনৰ উত্তৰ বিচাৰি থকা সাধকসকলক কি প্ৰত্যাহ্বান দিছে? চুনৌতি মানে কি চ্যালেঞ্জ দিছে? চাবাচোন। सुआ, लेखक ने जीवन के साधकों को यह चुनौती दी है कि अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही संतोष मिल जाए तो समुद्र अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा? एतुए কৈছিলে যে ओ साधकों, जीवन के साधकों, अगर मरी हुई सीपियों से ही तुम संतुष्ट हो जाओ, ठीक है,
संतोष मिल जाए मरार खुलार पराय जदि तुमी सन्तुष्ट तेनेहले समुद्र के अंतराल में छिपे हुए माने सागৰৰ गभীৰতাত লুকাই থকা हे मुक्तिक कोश माने मुकुटामणिर धन कोने उलाय आनिब ठीक আছে एटुई কথা কৈছিলে आगे बढ़ो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में लेखक ने जिंदगी की कौन सी 2 सूरतें बताई है और उनमें से किसे बेहतर माना है लेखके जीवনৰ কোনটো দুটা ৰূপ কৈছে ঠিক আছে কোনটো দুটা ৰূপ কৈছে আৰু সেই ৰূপৰ ভিতৰত কাক বেছি শ্ৰেষ্ঠ মানা হৈছে ঠিক আছে কোনটো ৰূপ ভাল বুলি কৈছে জীৱনৰ চাবা लेखक ने जिंदगी की 2 सूरतें बताए दुईटा दिख কৈছে হয় না নহয় आदमी बड़े से बड़े प्रथम की আছিলে प्रथम रूप सोआ आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करता है और जगमगाती जीत को वह हासिल करना चाहता है प्रथमे নিজৰ লক্ষ্যৰ বাবে কি কৰে কষ্ট কৰে ঠিক আছে চেষ্টা কৰি গৈ থাকে আৰু जगमगाती जीत জিলিকি থকা জয় লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে दूसरी सूरत यह है कि आनेता दिख की है रूप की है यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाते हैं जिन्हें ना बेसी सुख पाए ना बेसी दुख पाए ना अधिक दुख पाने का संयोग है फिर उसके बाद कहा था वह थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं अलपते की हो जाए अलपते चली जाए और लेखक ने थोड़े में गुजारा करने को ही बेहतर माना है और लेखके की কৈছে अलपते जोने चली जाए अलपते जोने संतुष्ट हो जाए সেইবোৰে ভাল বুলি কৈছে ঠিক আছে तब सुआ जीवन में सुख प्राप्त ना होना और मौके पर हिम्मत ना दिखा पाना इन दोनों में से लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों जीवन सुख नुपुआ আৰু मौके पर हिम्मत ना दिखा पाना আৰু সময়ত সাহস দেখাব নোৱাৰা এই দুটা ভিতৰতে লেখকে কাক শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে আৰু কিয় কৈছে ठीक है सुआ आंसर लेखक ने जीवन में सुख प्राप्त ना होने को श्रेष्ठ माना है ठीक है सुख नुपुआटोए ভাল বুলি কৈছে সাংসাৰিক জীৱনত আমি যা সুখ বুলি কওঁ হেবোৰ নুপুआटोए श्रेष्ठ বুলি কৈছিলে কিয় কৈছিলে क्योंकि सुख भोग सभी को नहीं मिलता कारण सुख সকলোৱে নাপায় হয় না নহয় उसके लिए जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सुख পাবলৈ কি কৰিব লাগিব প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হ'ব লাগিব চ্যালেঞ্জ সন্মুখীন হ'ব লাগিব पर जिसने जिंदगी में चुनौती भरे मौके पर हिम्मत नहीं दिखाई जुने लागार সময়ত ঠিক আছে সময়ত কি কৰা নাই প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হ'ব পৰা নাই আৰু সিদ্ধান্তৰ সময়ত সাহস দেখাব পৰা নাই उसे खुद की आत्मा से धिक्कार भरी आवाजें सुननी पड़ती है कि तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए और तुमने समय पर साहस नहीं दिखाया हे ব্যক্তিজনে যেন অন্তৰৰ পৰা এটা মাত শুনে মৰাৰ সময়ত যে তুমি সময়ত কি দেখাব নোৱাৰিলা সাহস দেখাব নোৱাৰিলা তুমি ভয়াতুৰৰ নিচিনা পলাই আহিছা ঠিক আছে জীৱনৰ পৰা তুমি পলাই আহিছা বুলি তাৰপিছত সোৱা इसलिए लेखक ने सुख प्राप्त ना होना को ही श्रेष्ठ माना है এই কাৰণে লেখকে সুখ নুপুआटोए श्रेष्ठ বুলি কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত সোৱা पाठ के अंत में दी गई कविता की पंक्तियों से युधिष्ठिर को क्या सीख दी गई है पाठर শেষত যোনটো কবিতা দিয়া হৈছিল ঠিক আছে যোনটো কবিতা দিয়া হৈছিল সেই কবিতাৰ জৰিয়তে युधिष्ठिरক কি শিক্ষা দিয়া হৈছিল ঠিক আছে को क्या सीख दी गई है युधिष्ठिरক কি কোৱা হৈছিল সাবা पाठ के अंत में कविता की पंक्तियों से युधिष्ठिर को यह सीख दी गई है कि जीवन उन लोगों के लिए नहीं है जो सामने चुनौती देखकर भागते हैं युधिष्ठिरक কৈছিল যে জীবন তেওঁলোকৰ বাবে নহয় যোনে কষ্টৰ পৰা পলাই থাকে যোনে ৰিস্ক লবলৈ নিবিচাৰে ঠিক আছে যোনে প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হ'বই নোৱাৰে বুলি যোনে ভয় খায় जीवन उन लोगों के लिए है जीवन তেওঁলোকৰ বাবেহে হয় যোনে जो अपने चरण रोककर निर्भय होकर लड़ते हैं जीवन তেওঁলোকৰ বাবেহে হয় যোনে ভয় নকৰাকৈ নিজৰ লক্ষ্যৰ বাবে কষ্ট কৰে আৰু সদায় আগুৱাই যায় আৰু মহান সিদ্ধান্তৰ সময়ত সাহস দেখাব পাৰে ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো আশা কৰিছো তোমালোকে এই প্ৰশ্নসমূহ ভালকে বুজি পাইছা আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ